हेलो बच्चों, वेलकम टू कीस्टोन एडू। आज इस वीडियो में हम लेंगे आपकी कनेक्ट विद द साइंस क्लास 5 का चैप्टर रहेगा। आज चैप्टर 8 साउंड एंड द नॉइज़। तो बने रहिए हमारे साथ। हम काफ़ी सारे वीडियोस बना रहे हैं आईसीएसई, सीआईएसई, सीबीएसई एंड स्टेट सिलेबस के रिलेटेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड एंड नॉइज़ से। अब मैं बात कर रहा हूँ तो ये साउंड है, मैं ज़्यादा बात करूँगा तो नॉइज़ हो जाएगा। तो बस यही टॉपिक आपको आज मिलेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। All the objects around us make a different sounds. We can hear these sounds with the help of our ears. Some sounds are pleasant to hear, whereas other sounds may seem unpleasant and harsh. We will learn more about sounds and the noise in this chapter. यानी याद रखो, चंद लोग होते हैं, ए ज़्यादा आवाज़ मत कर, मुझे इरिटेट हो रहा, या ज़्यादा साउंड म्यूज़िक थोड़ा कम करो, मुझे इरिटेट हो रहा, या मुझे पसंद नहीं। चंद लोगों को ज़्यादा म्यूज़िक पसंद है। यानी कुछ अनप्लेजेंट और हार्श होना ये नॉइज़ पोल्यूशन करता है। ओके, तो साउंड अच्छा है लेकिन ज़्यादा है तो वो बुरा है, याद रखो। साउंड अराउंड अस, साउंड्स अराउंड अस, हमारे अतराफ क्या साउंड्स होते हैं। फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप इन द मॉर्निंग till the time we get to sleep, we hear a large number of different sounds throughout the day. Every object around us makes a distinct sound. Distinct यानी अपना एक अंदाज है। अलार्म का साउंड करना अलग है, कार की हॉर्न का अलग है, बाइक का हॉर्न का साउंड अलग है, उसकी गाड़ी का इंजन का आवाज़ अलग है, आपका कुछ गिरना उसका आवाज़ अलग है। यानी डिफरेंट डिस्टिंक्ट रहता है, हर चीज़ का एक यूनिक होता है। Some of these sounds make us feel happy and relaxed, whereas other sounds may hurt our ears if we listen to them for too long. Let us learn more about the different types of sounds around us. अब हवा, लहरें रहती हैं ओशन की, बहुत अच्छा लगता है। ओके, तूफान आ गया, डर आ जाता है, वही साउंड। ओके, राइट। साउंड्स मेड by the by common objects. Different objects in our home, such as utensils in the kitchen, alarm clock, fan, telephone, refrigerator, washing machine, air cooler, make a different sounds. Some of these sounds are so low that we may not able to hear them unless we listen to them very closely. Other sounds are loud and can be heard from some distances away. The following are the common household sounds. A clock produces soft a tick tock sound when it sounds seconds hand moves. Correct. The doorbell produces a loud musical sound so that the people inside the house can know when someone is at door. The hinges of the old door may make a creaking sound when the door is opened or closed. Open होता है। Fact file. If there is no air, you will not be able to hear a sound, as a sound needs a medium to travel. चांद पे जब गए थे ना एस्ट्रोनॉट, साउंड एयर नहीं रहता है तो साउंड ही नहीं आता है। ओके, तो वो डिवाइस लेके गए थे ताकि यू कैन स्पीक। ओके, फैंस एंड वॉशिंग मशीन्स मेक अ साउंड whirring और whirling sound. Whirring जो आता है ना उसका घूमने का। A tea kettle makes a low hissing sound when steam escapes from it. The pressure cooker makes a loud whistling sound when steam escapes from it. Sounds made by the living beings जो हमने बनाए हैं. All the living beings make different sounds. Human beings mostly use the sounds of their voices when speaking to each other. When we visit a crowded market, a playground, or a railway station, we hear so many different sounds. We can hear announcement of being made over a loudspeaker, people talking to each other, children shouting and running in the ground, and many more such sounds. आपको पता है चंद लोग होते हैं जहाँ पर साउंड की वजह से वो पता चलता है कि यहाँ तो स्कूल है। कैसे पता चला? रिंग बेल सुनकर, या बच्चों की वो खेलने की आवाज़ सुनकर पता चलता है कि ओ शायद यहाँ स्कूल है क्या आपके घर के नज़दीक। यस, तो ये साउंड भी कुछ बताते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। साउंड काफ़ी सारे, जैसे कि डॉक्टर होते हैं वो हार्ट रेट चेक करते हैं, हार्ट का साउंड चेक करते हैं, ब्रेथ साउंड्स चेक करते हैं, पेट में टमी के साउंड्स चेक करते हैं। इससे उनको पता चलता है कौन सी बीमारी है, कौन से इनको डिसीजेस प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कैसा इनका प्रॉब्लम्स है। तो साउंड हेल्प भी करते हैं, लेकिन अगर वो हद से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बुरे बन जाते हैं, वो हमें बीमारियां भी दे सकते हैं,
हेडेक दे सकते हैं, माइग्रेन दे सकते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट कंडीशंस प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और आते आते इतना ज़्यादा हो जाता है कि हियरिंग लॉस हो जाता है, यानी सुनाई नहीं देता है हमें। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Okay, we also make a different sounds by rubbing our palms together, clapping our hands, snapping our fingers, stomping our feet, whistling, singing. We also make a sound when we cough or sneeze. तो पता ही है आपको कैसे कैसे sounds आते हैं, right? Animals and the birds also make a different sounds. We can easily recognize an animal or a bird by the type of the sound it makes. Some of the animals and the bird sounds that they are familiar with include roaring of the tiger, lion, chattering of the monkeys, howling of the wolves, and screeching of the parrots. Okay, and chirping of sparrows, cooing of the pigeons. ये आपको सब याद रखना है, इनके कैसे इनके साउंड होते हैं। कभी कभी आपको जनरल नॉलेज में, यानी आपको इसकी एग्ज़ाम में कौन सी ओलंपियाड जो एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पर भी आपको पूछ सकते हैं। ओके, चर्पिंग ऑफ द कूइंग ऑफ द पिजन्स, बाकिंग ऑफ द डॉग्स। ओके, याद रखो। Animals and the birds may use different sounds to make to send out information about the location of the food, and also warning calls to inform others of danger. Some male animals and the birds also use special sounds to attract females. When we walk through a park on a windy day, we can hear the rustling of the leaves in the wind, rustling of the leaves. When we walk or on a dry fallen leaves, they make crackling sound under our feet. चिर चिर आवाज़ आती है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। ये साउंड्स कुछ बताते हैं हमें। ओके, warning sounds. Warning sounds are loud sounds that are used to warn the people about a danger of an emergency. These warning sounds are important as they alert people to their get out of or stay away from the place or situation that may put their lives in danger. For example, आप समझो कि आप एक शहर में हो। ओके, आप जहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर एक टाइगर आ गया है, तो आपको पता नहीं। ओके, आप न्यूज़ नहीं देखते हो, समझो कि आपने मोबाइल वगैरह या तो न्यूज़ अपडेटेड नहीं हो, आप किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हो ज़्यादा, तो क्या हो जाता है कि ये गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ की जो होती है वो लाउड स्पीकर में देकर क्या करती है, इतला देती है, इन्फॉर्मेशन देती है, अब अलर्ट करती है लोगों को कि यहाँ पर एक टाइगर घूम रहा है, आप सब लोग घर पर रहिए, जब तक हम पकड़ते नहीं आप कोई भी घर से बाहर मत निकलिए। ये इंपॉर्टेंट वार्निंग साउंड हो गया, आपको वार्निंग कर रहा है, वार्न कर रहा है। घर से बाहर निकलोगे तो टाइगर आपको खा जाएगा, राइट। जब तक हम उसको पकड़ते नहीं तब तक आप घर में रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हेल्प होती है, आपकी जान बच जाती है इससे। तो ऐसे वार्निंग्स आ जाते हैं। फ्लड्स आ गया है, यानी ये समझो कि आपकी यहाँ पर ड्रैम फूट गया है, पानी आ रहा है, तो घर से बाहर निकलो, सब लोग घर से बाहर निकलो, क्योंकि डैम फट गया। अभी पानी एक आधे घंटे में आ सकता है। आपका जितना इंपॉर्टेंट सामान है वो लेकर आप ये प्लेस पे चले जाओ। ये भी वार्निंग साउंड हो गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साउंड मेड बाय फायर अलार्म। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। फायर अलार्म मेक्स अ नॉइज लाउड साउंड टू वार्न द पीपल इनसाइड द बिल्डिंग अबाउट अ फायर। वी मस्ट इमीडिएटली लीव द बिल्डिंग थ्रू द फायर एग्जिट व्हेन वी हियर द फायर अलार्म इवन इफ वी कैनॉट सी द फायर। अब देखो एक बड़ी बिल्डिंग होती है, अब तो वहाँ पर वार्निंग देने के लिए टाइम नहीं होता है। ओके, तो वहाँ पर एक अलार्म होता है, फायर अलार्म, जहाँ पर जैसे ही पता चलता है वो डिटेक्ट करता है, सेंसर डिटेक्ट करते ही क्या करता है, टिर बोल के साउंड करता है, अलार्म करता है, जिससे अलर्ट हो जाते तुम, ओ फायर हो गया। तो वहाँ पर देखना है, एग्जिट साइन होती है, वहाँ से आपको भागना है। Police siren. Police siren makes a sound, loud noise, and warns the people and vehicles on the road to allow the police to pass through so that police can reach the people in danger as fast as possible. आपको पता है कोरोना के टाइम में आप फिरती थी, क्योंकि ज़्यादा लोग मत घूमो, वार्निंग हो रहा है, पुलिस आ रही है। ये भी एक साउंड होता है। एम्बुलेंस सायरन, ये तो बहुत ही जान पहचान का, और आप यू नो वेरी वेल, राइट। तो एन एम्बुलेंस सायरन इज यूज्ड व्हेन एम्बुलेंस इज ऑन इट्स वे टू ईदर रीच अ पेशेंट और ट्रांसफरिंग अ पेशेंट टू द हॉस्पिटल। इट मेक्स अ लाउड नॉइज सो दैट द व्हीकल ऑन द रोड अलाउ द एम्बुलेंस टू पास थ्रू सो दैट द मेडिकल हेल्प कैन रीच पेशेंट एज क्विकली एज पॉसिबल। आप गाड़ी चला रहे हो आगे, या डैडी मम्मी चला रहे हैं, एम्बुलेंस की साउंड आ रही, तो एम्बुलेंस को पहले जगह दो जाने के लिए। ओके, ऐसा मत समझो कि आप फर्स्ट हैं तो मैं फर्स्ट जाऊंगा फिर एम्बुलेंस आएगी, नहीं, आपको एम्बुलेंस के लिए जगह देना चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट रहता है, बीमार रहता है, उसको ट्रीटमेंट चाहिए, राइट। नाउ फायर इंजन. Fire engine sound siren. A fire engine uses its siren when it's on a way to extinguish. Extinguish यानी क्या करते हैं,
फायर को बंद करने के लिए एक्सटिंग्विश कहते हैं, और वो जो मशीन होती है उसे एक्सटिंग्विशर कहते हैं. ए फायर दैट हैज गॉन आउट ऑफ द कंट्रोल, इट मेक्स अ लाउड नॉइज सो दैट द व्हीकल ऑन द रोड अलाउ द फायर इंजन टू पास थ्रू सो दैट द फायर कैन बी कंट्रोल्ड एंड द पीपल ट्रैप्ड इनसाइड द फायर कैन बी हेल्प्ड इजीली एट द इजीएस्ट. ओके, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड. ओके, वार्निंग साउंड्स पता चला आपको, पुलिस का होता है, एम्बुलेंस का होता है, फायर का होता है, राइट. ओके, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट. अच्छा और बुरा साउंड क्या आता है? अच्छा लगता है हमें, बुरा. ओके, एक्सटिंग्विश का मतलब है पुट आउट. पुट आउट याद रखो, ये फायर में यूजुअली यूज किया जाता है, पुट आउट. ओके, एक्सटिंग्विशर यानी वो जो मशीन होती है जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जहाँ पर वो गैस होती है, जहाँ पर बंद करने के लिए, फायर बंद करने के लिए यूज किया जाता है. ओके, pleasant and unpleasant sounds. Pleasant sounds and unpleasant sounds. We enjoy listening to the music. It is pleasant sound. Any sound that makes us feel happy and relaxed can be called as a pleasant sound. The following are some examples of pleasant sounds. Music from different musical instruments such as sitar, harmonium and guitar. यहाँ पर दिया ना, guitar, harmonium and sitar. Sounds makes waves on the beach. Rustling sounds make leaves in gentle breeze. ये बहुत अच्छा लगता है. लेकिन कभी कभी ये साउंड आपको जो प्लेजेंट लग रहा है उसका मतलब नहीं है कि आपके भाई को भी प्लेजेंट लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. कभी कभी इरिटेबल भी हो सकता है. ओके, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं सबको अच्छा लगेगा, या मुझे अच्छा लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सबको अच्छा लगेगा, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि मुझे खराब लगेगा तो सबको खराब लगेगा, राइट. कोई अच्छा एंजॉय करेगा, राइट. ओके, ऐसा होता है. साउंड्स ऑफ जेंटली फॉलिंग रेन, gentle chirping of this one birds, sounds of a people screaming or vehicle honking does not sound very pleasing. Such sounds are unpleasant. Any sound that makes us feel uncomfortable, irritable, causes feeling of being unwell can be called an unpleasant sound. The following are examples of unpleasant sounds. अनप्लेजेंट यानी आपको इरिटेबल होता है, अनकंफर्टेबल होता है, आपको दिक्कत होती है आपको, तो इसे अनप्लेजेंट कहा जाता है. Honking of the vehicles on the road, loud explosions, loud sounds made by the aircraft while taking off and landing, noise from the factories and the generators, loud music. तो आपको पता है कि कितने सारे साउंड्स होते हैं. फैक्ट्रीज की साउंड्स होती है, लाउड एक्सप्लोजन की होती है, बॉम्ब का गिरना होता है. हिरोशिमा नागासाकी, उसके बारे में V2 में देखो कैसा हुआ था, वो बॉम्बिंग कितना खराब हुआ था, कितना बुरा हुआ था, कितनी साउंड आई थी और लाइट आई थी वहाँ पर, जहाँ पर ब्लाइंडनेस हुआ था, हियरिंग लॉस होता, डेथ हो गए थे. ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फिर क्वेश्चंस यहाँ पे, सम साउंड हर्ट आवर डैश इफ वी लिसन टू देम फॉर अ लॉन्ग. हर्ट आवर क्या, हर्ट आवर ईयर्स होगा. ओके, राइट, वो देखेंगे हम, क्वेश्चन आंसर करेंगे. द हिंजेस ऑफ एन ओल्ड डोर मेक्स डैश साउंड व्हेन द डोर इज ओपन और क्लोज. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हर एक चीज़ का जो उन्होंने बताया है इसमें कि वो साउंड, चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स और रोरिंग ऑफ द टाइगर, बार्किंग ऑफ द डॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उस जानवर से या उस टाइप ऑफ साउंड से आपको वर्ड्स याद रखनी होती है. एन एग्जाम्पल ऑफ वार्निंग साउंड्स, चैटरिंग, चर्पिंग, हॉलिंग, याद रखो. ओके, राइट. अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जा रहे हैं जिसका नाम है नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन यानी पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखो. A loud and unpleasant sound that can cause a physical and a mental disturbance is called a noise. Unpleasant तो होगा, but ये loud होगा, unpleasant भी होगा, और physical और mental disturbance होगा, जिसे कहा जाता है noise. Listening to the loud noise for a long time can be harmful to our ears. Loud noise disturbs our comfort levels. Excessive and continuous noise which impacts human and animal health is called noise. Noise का definition क्या है? Yes. Pollution. What is pollution? Noise pollution causes disturbances to all living beings, especially children, elderly, and sick people and animals. Noise pollution does not allow people to sleep properly, concentrate on their work, or even talk to each other. Some common causes of noise pollutions are loud noises produced by the machines. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका घर है, वहाँ पर मैंने फैक्ट्री लगाया तो कैसा लगेगा आपको, कितना साउंड आएगा. रात में काम चलता रहेगा, मशीन्स के साउंड्स आते जाएंगे, आपको डिस्टर्ब हो जाएगा. इसीलिए
गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे फैक्ट्रीज को सिटी से काफ़ी दूर रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेगुलर पब्लिक होती है, लोग होते हैं, रेसिडेंशियल एरिया जो होता है वो डिस्टर्ब ना हो और उनका काम चलता रहे। नॉइज़ पोल्यूशन से बचने के लिए चीज़ें किए जाता है। यूजुअली चंद कंट्रीज़ में होते हैं घर, यहाँ पर इंडिया में क्या होता है, रोड पे जितना हो उतना डिमांड होता है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में क्या होता है, जितना अंदर होता है उतना वो डिमांड होता है, क्योंकि उतना नॉइज़ पोल्यूशन फ्री होता है, आराम से होता है। वरना गाड़ी के इतने आवाज़ आ जाते हैं जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, पढ़ाई में डिस्टर्ब, स्लीप में डिस्टर्ब, हेल्थ में डिस्टर्ब, कान खराब, सेहत खराब, राइट। Okay, some common causes of noise pollution are loud noises produced by the machines in the factories, from the loudspeakers, televisions, radios, electrical appliances. The noise made by the aircrafts while taking off and landing is a main cause of noise pollution for people staying near the airports. Unnecessary honking or of traffic on the roads and bursting of crackers can also cause a lot of noise pollution. ट्रेन रेलवे स्टेशन के पास आपका घर है तो आपको पता है कितना आवाज़ आ जाता है ना, कितनी बार ट्रेन जाएगी उतना बार आवाज़ आ जाएगा। तो नॉइज पोल्यूशन, आप ट्रेन की आवाज़ तो नहीं बंद कर सकोगे, एटलीस्ट वहाँ पर घर नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन, क्या होता है अगर नॉइज पोल्यूशन हो तो, कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू वेरियस सोर्सेस ऑफ नॉइज, even noise that may not be very loud may have several ill effects on our health. Noise pollution can cause following problems: dizziness, headache and earaches. Dizziness यानी चक्कर आना, headache यानी सर दुखना, earache यानी एक यानी दर्द, ear यानी ear यानी कानों का दर्द होना, tiredness and stress, थक जाओगे, टेंशन में रहोगे, लॉस ऑफ स्लीप एंड लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सो नहीं पाओगे तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, पढ़ाई आप क्या करें समझ नहीं पाओगे, हाइपरटेंशन एंड इवन परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग। बीपी अभी आ गई जाए, बीपी को हाइपरटेंशन कहा जाता है, और हियरिंग लॉस परमानेंट और टेम्पररी होते हैं। परमानेंट यानी हमेशा के लिए आपको सुनाई नहीं देगा। नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज हियरिंग लॉस एंड इरिटेबिलिटी टू इन एनिमल्स टू, वहाँ पर भी उनको डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, एनिमल्स डर जाएंगे, एनिमल्स खा नहीं पाएंगे, एनिमल्स वहाँ नहीं आ पाएंगे डर के। ओके, वेज ऑफ रिड्यूसिंग नॉइज पोल्यूशन, अब कैसे कम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। We should take the following preventive measures to save ourselves from the noise pollution. क्या करना चाहिए? Avoid using loudspeaker for too long or too loudly. कुछ फंक्शन चल रहा है, ज़्यादातर लाउड स्पीकर लगा के गाने लगा कर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए रेसिडेंशियल एरिया में, राइट। गेट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चेक्ड रेगुलरली टू रिड्यूस द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय देम। ओके, अगर वो ज़्यादा मशीन आवाज़ करिए तो उसे चेक कराओ, शायद उसका कम होगा। फैन का आवाज़ आ रहा है तो चेक करा के उसको ठीक कराओ, अब नॉइज पोल्यूशन चला जाएगा। ट्रैफिक शुड बी रेगुलेटेड टू अवॉइड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स। अननेसेसरी हॉकिंग शुड बी कंट्रोल्ड इन रेजिडेंशियल एरियाज नियर स्कूल्स एंड द हॉस्पिटल्स। पी मारते नहीं बैठना है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि साउंड आपसे कार में से बाहर जा रहा है, लेकिन आपको नहीं सुना, इसीलिए मस्त एंजॉय नहीं करना है। अगर ज़रूरत है तो ही हॉर्न करना है, वरना नहीं करना चाहिए। स्कूल्स, ये हॉस्पिटल्स, ये रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर घर होते हैं वहाँ पर अवॉइड कीजिए, अननेसेसरी हॉर्न्स मत कीजिए। ओके, और बर्ड्स की भी जो सेंचुरी होती है वहाँ पर भी मत कीजिए, जूज होते हैं वहाँ पर भी मत कीजिए, बर्ड्स भी डर जाते हैं, एनिमल्स भी डर जाते हैं। यूज़ हेवी कारपेट्स एंड कर्टन्स एट अ होम, दे हेल्प इन अब्सॉर्बिंग नॉइज फ्रॉम द आउटसाइड। प्लांट ट्रीज इन द नेबरहुड, ट्रीज एंड प्लांट्स आल्सो अब्सॉर्ब नॉइज टू ग्रेट एक्सटेंट। देखो कितना इंपॉर्टेंट, प्लांट्स के कितने यूज़ होते हैं, उसमें वो साउंड भी एब्सॉर्ब करते हैं ताकि हमें साउंड पोल्यूशन से बच सकें, नॉइज पोल्यूशन से बच सकें। अवॉइड वॉचिंग टेलीविजन एंड लिसनिंग टू रेडियो एट हाई वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम लगाकर गाने सुनना या टीवी देखना या न्यूज़ देखना, ताकि बाजू आप में रूम में आपका भाई पढ़ रहा है, आपका भाई कुछ काम कर रहा है, आपका भाई कुछ सो रहा है या नेबर सो रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही आपको यूज़ करना चाहिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स करोगे, ये पढ़ोगे, मैं क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, और आपको पता चलेगा। और वार्म अप पे कुछ नहीं होता, जो भी हमने पढ़ा है सब वही चीज़ आपको एक वार्म अप पे पता चलता है। इतना पता चला कि साउंड अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ज़्यादा हो तो हियरिंग लॉस होता है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेल्थ इफेक्ट्स हो सकता है, एनिमल्स में वो खराबी लाता है। ओके, प्लांट्स हमें हेल्प करते हैं, कारपेट्स हमें हेल्प करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन कम करने में। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो इस वीडियो को। टेक केयर।